आदाब केपी न्यूज 24/7 में आप सभी का स्वागत है। मैं हूं मुस्तफा आदिल। आइए अब देखते हैं मुख्य समाचार। बीदर जिले के भालकी तालुके के मर्चापुर ग्राम में शिव योगी सिद्धरामेश्वर की 853वीं जयंती मनाई गई। मुडा घोटाले की जांच सीबीआई को सौंपने पर कर्नाटक हाईकोर्ट का आदेश सुरक्षित, लोकायुक्त जांच जारी। महाराष्ट्र में भी लागू किया जाएगा यूसीसी, मल्लिकार्जुन खड़गे के बयान पर भाजपा नेता का पलटवार। झांसी से प्रयागराज जा रही ट्रेन पर हमला, उपद्रवी जमकर करते रहे पथराव, यात्री दहशत में थे। बीजेपी ने दिल्ली चुनाव के लिए नया कैंपेन सॉन्ग भाजपा दिल्ली ने किया जारी। शत्रुघ्न सिन्हा दिल्ली विधानसभा चुनाव में आम आदमी पार्टी के लिए प्रचार करेंगे, टीएमसी सूत्रों ने बताया। अब समाचार विस्तार से। बीदर जिले के भालकी तालुके के मर्चापुर ग्राम में शिव योगी सिद्धरामेश्वर की 853वीं जयंती बड़ी ही गौरव और श्रद्धा के साथ मनाई गई और एक भव्य रैली भी निकाली गई। इस कार्यक्रम के अध्यक्ष तुकाराम एनकोरे थे और इस कार्यक्रम का उद्घाटन शिवरप्पा हुग्गे पाटिल, रिटायर्ड प्रिंसिपल अक्का महादेवी पदवी पूर्व कॉलेज बीदर ने किया। इनके अलावा भूवी वड्डर समाज बीदर के जिला अध्यक्ष संतोष एनकोरे मुख्य अतिथि थे। इनके अलावा इस अवसर पर संगमेश पाटिल पूर्व अध्यक्ष बीएसएस के और सुनील अलियंबर जगदेवी अमरूद ग्राम पंचायत उपाध्यक्ष मर्चापुर, प्रभु पाटिल पीकेपीएस प्रेसिडेंट, शरणप्पा कार्यक्रम के आयोजक, संतोष ग्राम पंचायत मेंबर, मल्लिकार्जुन चौड़े पूर्व ग्राम पंचायत मर्चापुर, रामदास एनकोरे, मारुति एनकोरे के अलावा भारी संख्या में पुरुष महिलाएं श्रद्धालु उपस्थित थे। इस अवसर पर शिव योगी सिद्धरामेश्वर को श्रद्धांजलि अर्पित की गई। इस अवसर पर सभी उपस्थित अतिथियों और गणमान्य व्यक्तियों का सम्मान किया गया। भूवी वड्डर समाज के वरिष्ठ व्यक्तियों ने मीडिया से बात की। केपी न्यूज के कैमरामैन महेश डिगे का कवरेज। बंधुगळे, ಇವತ್ತು ನಾವೆಲ್ಲರೂ ಬೀದರ್ ಜಿಲ್ಲೆಯ ಮಲ್ಚಾಪುರ ಗ್ರಾಮದಲ್ಲಿ ಶಿವಯೋಗಿ ಸಿದ್ದರಾಮೇಶ್ವರರ ಜಯಂತಿಯನ್ನು ಅತ್ಯಂತ ಅರ್ಥಪೂರ್ಣವಾಗಿ, ವೈಭವಪೂರ್ವಕವಾಗಿ, ಭಕ್ತಿ ಗೌರವದಿಂದ ಗ್ರಾಮಸ್ಥರೆಲ್ಲರೂ ಸೇರಿ ನಮ್ಮ ಭೋವಿ ಸಮಾಜದ ವತಿಯಿಂದ ಶಿವಯೋಗಿ ಸಿದ್ದರಾಮೇಶ್ವರರ ಜಯಂತಿಯನ್ನು ಈ ಸಂದರ್ಭದಲ್ಲಿ ನಾವೆಲ್ಲರೂ ಆಚರಣೆಯನ್ನು ಮಾಡಿದ್ದೇವೆ. ಇಲ್ಲಿ ನೆರೆದಿರ್ತಕ್ಕಂಥ ಈ ಸಮೂಹವೇ ಸಾಕ್ಷಿಯಾಗಿದೆ ಎಷ್ಟು ವೈಭವದಿಂದ ಈ ಜಯಂತಿಯನ್ನು ನಾವು ಆಚರಣೆ ಮಾಡಿದ್ದೀವಿ ಅಂತಕ್ಕಂಥ ಮಾತು ಈ ಸಂದರ್ಭದಲ್ಲಿ ನಾನು ತಮ್ಮೆಲ್ಲರಿಗೆ ಹೇಳಬಯಸ್ತಾ ಇದ್ದೀನಿ. ಅದೇ ರೀತಿಯಾಗಿ ಸಮಸ್ತ ಬೀದರ್ ಜಿಲ್ಲೆಗೆ ಮಲ್ಚಾಪುರದ ಗ್ರಾಮದ ವತಿಯಿಂದ ಶಿವಯೋಗಿ ಸಿದ್ದರಾಮೇಶ್ವರ ಜಯಂತಿಯ ಶುಭಾಶಯಗಳನ್ನು ಈ ಸಂದರ್ಭದಲ್ಲಿ ನಾನು ಸಲ್ಲಿಸ್ತಾ ಇದ್ದೀನಿ. ಬಂಧುಗಳೇ, ಜಯಂತ್ಯೋತ್ಸವ ಆರ್ಥಿಕ ಶುಭಾಶಯಗಳು. ಈ ಸಂದರ್ಭದಲ್ಲಿ ಇವತ್ತಿನ ದಿವಸ ಮಲ್ಚಾಪುರ ಗ್ರಾಮದಲ್ಲಿ ಶ್ರೀ ಶಿವಯೋಗಿ ಸಿದ್ದರಾಮೇಶ್ವರ ಜಯಂತಿ ಪ್ರಥಮ ಬಾರಿಗೆ ಆಚರಿಸಲಾಯಿತು. ಇದು 2 ದಿವಸದ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮ ಆಗಿತ್ತು. 2 ದಿವಸದಲ್ಲಿ ತರಾತುರಿಯಲ್ಲಿ ಆಗಿತ್ತು, ಅದ್ದೂರಿ ಅಂತೇಳಿ ಎಲ್ಲರಿಗೂ ಅನಿಸ್ತದೆ. ಜಿಲ್ಲೆಯ ಒಳಗೆ ಯಾವುದೇ ಗ್ರಾಮದಲ್ಲಿ ಈ ಥರ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮ ಆಗಿಲ್ಲ. ಈ ಮುಂದೆ ಬರ್ತಕ್ಕಂಥ ದಿನಗಳಲ್ಲಿ ಎಲ್ಲ ಗ್ರಾಮಗಳಲ್ಲಿ ಸಿದ್ದರಾಮೇಶ್ವರ ಜಯಂತಿಯನ್ನು ವಿಜೃಂಭಣೆಯಿಂದ ಆಚರಿಸಬೇಕು. ಮತ್ತು ಮುಂದಿನ ವರ್ಷ ಇದೇ ಜಯಂತಿ ಸಿದ್ದರಾಮೇಶ್ವರ ಜಯಂತಿ ಈ ಮಲ್ಚಾಪುರ ಗ್ರಾಮದಲ್ಲಿ ಎಲ್ಲ ಹಳ್ಳಿ ಜನ ಮತ್ತು ಬೀದರ್ ಜಿಲ್ಲೆಯ ಜನತೆಗೆ ಮತ್ತು ಮುಂದೆ ಜಿಲ್ಲಾ ಉಸ್ತುವಾರಿ ಸಚಿವರು, ಸಂಸದರು ಎಲ್ಲರಿಗೂ ಕರೆಸಿ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮ ಮಾಡಿ ನಮ್ಮ ಸಮಾಜ ದಿನದ ಬೇಡಿಕೆಗಳು, ಸಮುದಾಯ ಭವನ ಆಗಲಿ ಮತ್ತು ಎಲ್ಲ ಮನೆಗಳು, ಕೆಲವೊಬ್ರದ್ದು ಇನ್ನೊಂದು ಬೇರೆ ಬೇರೆ ಸಮಸ್ಯೆಗಳು ಇರ್ತವೆ. ಎಲ್ಲದಕ್ಕೆ ಸಚಿವರಂದ್ರೆ ನಮಗೆಲ್ಲ ಕ್ಷೇತ್ರಕ್ಕೆಲ್ಲ ಅವರೇ ಇದಿರ್ತಾರೆ. ಅವ್ರಿಗೇನು ಉಸ್ತುವಾರಿ ಸಚಿವರಿದ್ರೆ ಅವ್ರು ಮಾಡಿದ್ರೆ ಎಲ್ಲ ಕೆಲಸ ಇತ್ತು. ನಮ್ಮ ಸಮಾಜ ಸಚಿವರ ಜೊತೆಯಲ್ಲಿ ಇರ್ತದೆ. ನಮ್ಮದು ಏನದ ಸಿದ್ದರಾಮೇಶ್ವರ ಕಲ್ಯಾಣ ಮಂಟಪ ಅಂತ ಕಟ್ಟಿಸ್ಬೇಕಂತೇಳಿ ತುಂಬ ದಿನದ ಇಲ್ಲಿ ಒಂದು ಜಾಗನೂ ಇದೆ. ಅದು ಸಚಿವರು ಮುಂದೆ ಬರೋಂಥ ಜಯಂತಿದಲ್ಲಿ ಕರೆಸಿ ಮಾಡಿಸ್ಕೊತೇವೆ ಅಂತೇಳಿ ಅವ್ರ ಭರವಸೆಯನ್ನು ಲಾಸ್ಟ್ ಟೈಮ್ ಮಾತಾಡಿದಾಗ ಹೇಳಿದಾರೆ ಅಂತೇಳಿ. ಈ ಸಿದ್ದರಾಮೇಶ್ವರ ಜಯಂತಿ ಇನ್ನೂ ಇಲ್ಲಿ ಕೆಲವೊಂದು ಊರಲ್ಲಿ ಗೊತ್ತಿಲ್ಲ, ಯಾವುದೂ ನಮ್ಮ ಸಮಾಜದಲ್ಲಿ ಶಿಕ್ಷಣವಂತರು ಇಲ್ಲ. ಅದ್ರ ಸಲುವಾಗಿ ಎಷ್ಟು ಜನ ಜಾಗೃತಿ ಮೂಡಿಸ್ಯಾರ ಅಂತಂದ್ರೆ ಅದು ಸಿದ್ದರಾಮೇಶ್ವರ ಆಶೀರ್ವಾದ ನಮ್ಮ ಮೇಲೆ ಎಲ್ಲರ ಮೇಲೆ ಇದೆ ಅಂತೇಳಿ ಈ ಜಯಂತಿ ಎಲ್ಲರಿಗೆ ಶುಭಾಶಯಗಳನ್ನು ಕೋರುತ್ತೇನೆ. ನನ್ನ ಹೆಸರು ಸಂತೋಷ್ ಅನ್ಪುರ್ ಅಂತ. ಇವತ್ತು ಶ್ರೀ ಶಿವಯೋಗಿ ಸಿದ್ದರಾಮೇಶ್ವರ ಜಯಂತಿಯ ಅಂಗವಾಗಿ ನಮ್ಮ ಮಾಚಿಪುರ ಗ್ರಾಮದಲ್ಲಿ ನಮ್ಮ ಎಲ್ಲ ಭೂವಿ ಸಮಾಜ ಬಂಧುಗಳೇನದಂದ್ರೆ ಆಚರಿಸ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ. ಇದು ಮೊದಲನೇ ಸಲ ಅನ್ನಿಸ್ತದ. ಅದಕ್ಕೆ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಇಯರ್ ಏನದ ಅಂದ್ರೆ ಭಾಳ ವಿಜೃಂಭಣೆಯಿಂದ ಮಾಡ್ಬೇಕಂತೇಳಿ ಎಲ್ಲ ನಮ್ಮ ಭೂವಿ ಸಮಾಜದವರು ಅದನ್ನೆಲ್ಲ ಈಗ ಮಾತಾಡಿದ್ದಾರೆ. ಕೆಲವು ಕಾರಣದಿಂದ ಉಸ್ತುವಾರಿ ಸಚಿವರಾಗಲಿ ಮತ್ತು ನಮ್ಮ ಇವರು MP ಅವರಾಗಲಿ ಬರ್ಲಿಕ್ಕಾಗಿಲ್ಲ. ಮುಂದಿನ ಸಲ ಏನದ ಅಂದ್ರೆ ಅವರಿಗೆ ಆಹ್ವಾನಿಸಿ ಭಾಳ ವಿಜೃಂಭಣೆಯಿಂದ ಭಾಳ ಚೆನ್ನಾಗಿ ಮಾಡ್ತೀವಿ. ಮತ್ತು ನಾವು ಗ್ರಾಮಸ್ಥರು ಕೂಡ ಎಲ್ಲ ಅವ್ರಿಗೆ ಏನು ಬೇಕಾಗಿದೆಲ್ಲ ಸಹಕಾರ ಕೊಡ್ತೀವಿ. ಇದಕ್ಕೂ ನಾವು ಅವ್ರಿಗೆ ಸಹಕಾರ ಕೊಟ್ಕೊತಾ ಬಂದೀವಿ. ಅವರು ನಮಗೆಲ್ಲ ರೀತಿಯಲ್ಲಿ ಸಹಕಾರ ಎಲ್ಲ ಇದರಲ್ಲಿ ಕೊಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ.
ಅದಕ್ಕೆ ಭೋವಿ ಸಮಾಜದವ್ರಿಗೆ ಬಿಟ್ಟು ನಾವಿಲ್ಲ, ನಮಗೆ ಬಿಟ್ಟು ಭೋವಿ ಸಮಾಜದವ್ರು ಇಲ್ಲ. ಮುಂದಿನ ವರ್ಷ ಏನದ ಅಂದ್ರೆ ಸಿದ್ದರಾಮೇಶ್ವರ ಜಯಂತಿ ಭಾಳ ಭವ್ಯವಾಗಿ ಆಚರಿಸ್ಬೇಕಂತ ಹೇಳಿ ಎಲ್ಲ ಈಗ ನಿರ್ಧಾರ ಮಾಡಿದ್ದು. ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಇಯರ್ ಏನದ ಅಂದ್ರೆ ನಾವು ಭಾಳ ಭವ್ಯ ಇದರಿಂದ ಸಿದ್ದರಾಮೇಶ್ವರ ಜಯಂತಿ ಆಚರಿಸ್ತೀವಿ ಅಂತೇಳಿ ತಮ್ಮೆಲ್ಲರಿಗೆ ಹೇಳಿ ಒಂದೆರಡು ಮಾತು ಮುಗಿಸ್ತಿದ್ದೀವಿ. ಸರ್, ತಮ್ಮ ಹೆಸರು? ಉಮೇಶ್ ಪಾಟೀಲ್ ಮಾತು. मिनिस्ट्री ऑफ यूथ अफेयर्स एंड स्पोर्ट्स और नेहरू युवा केंद्र बिदर द्वारा बिदर जिला पुलिस एवं यातायात पुलिस क्षेत्रीय परिवहन कार्यालय बिदर के सहयोग से राइजिंग हैंड्स संगठन बिदर, बागवानी महाविद्यालय बिदर द्वारा सड़क सुरक्षा जागरूकता अभियान 2025 सड़क सुरक्षा नायक बने चलाया गया। इस अवसर पर सोमू पाटिल ने ट्रैफिक पुलिस को फूल देकर उनका स्वागत किया और पुनीत निम्बोरे सोशल वर्कर और अन्य उपस्थित थे। जेपी न्यूज के कैमरामैन महेश डिग्गे का कवरेज। ಎಲ್ಲರಿಗೂ ಮಧ್ಯಾಹ್ನದ ನಮಸ್ಕಾರಗಳು. ಇವತ್ತು ನಾವು ಬೀದರ್ನಲ್ಲಿ ನೆಹರು ಯುವ ಕೇಂದ್ರ ಅಂದರೆ ನಾವು ಇವತ್ತು 5 ಸರ್ಕಲ್ನಲ್ಲಿ ನಮ್ಮ ಬೀದರ್ ಜನದ ಬಗ್ಗೆ ನಾವು ಅನೇಕ ಒಂದು ವಿಷಯಗಳನ್ನು ನಾವು ತಿಳಿಪಡಿಸಲಿಕ್ಕೆ ನಾವು ಸಿದ್ಧರಾಗಿ 5 ಗ್ರೂಪ್ಗಳ ಮುಖಾಂತರ ಅನೇಕ ಸರ್ಕಲ್ಗಳಲ್ಲಿ ನಾವು ಹೋಗಿ ಇವತ್ತು ಅನೇಕ ಜನರು ಅನೇಕ ಒಂದು ರೀತಿಯಲ್ಲಿ ಸಾವನ್ನಪ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ. ಕಾರಣ ಏನಂದರೆ ಅವರು ಸೀಟ್ ಬೆಲ್ಟ್ ಧರಿಸ್ತಾ ಇಲ್ಲ ಹಾಗೂ ಹೆಲ್ಮೆಟ್ ಹಾಕೊಳ್ತಾ ಇಲ್ಲ. ಏಕೆಂದರೆ ನಮ್ಮ ಸೇಫ್ಟಿ ನಾವು ಕಾಪಾಡಿಕೊಳ್ಳುವುದರಿಂದ ನಮ್ಮ ಜೀವವನ್ನು ನಾವು ರಕ್ಷಣೆ ಮಾಡಿಕೊಳ್ಳುವುದು ಅಂತ ಹೇಳ್ತೀವಿ. ಏಕೆಂದರೆ ಅನೇಕ ಜನರು ನಮ್ಮ ಸೇಫ್ಟಿಯ ಬಗ್ಗೆ ಚಿಂತೆ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ. ಏಕೆಂದರೆ ಅನೇಕ ಕಾರಣಗಳಿಂದ ಅವರು ಗುರಿಯಾಗ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ. ಏಕೆಂದರೆ ಅನೇಕ ಅಪಘಾತಗಳಾಗ್ತಾ ಇದ್ದಾವೆ. ಆದ ಕಾರಣ ನಾವೇನು ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದೀವಿ ಅಂದರೆ ಇವತ್ತು ನಮ್ಮ ಬೀದರ್ನಲ್ಲಿ ಅನೇಕ ಒಂದು ಸ್ಥಳಗಳಿಗೆ ನಾವು ನಮ್ಮ ಗ್ರೂಪ್ಗಳ ಮುಖಾಂತರ ಹೋಗಿ ಪಾಂಪ್ಲೆಟ್ಗಳನ್ನು ಕೊಟ್ಟು ನಾವು ಅನೇಕ ಜನರಿಗೆ ಈ ರೀತಿ ನೀವು ಹೆಲ್ಮೆಟ್ ಹಾಗೂ ನಿಮ್ಮ ಸೇಫ್ಟಿ ಬಗ್ಗೆ ನಾವು ಜವಾಬ್ದಾರಿಯನ್ನು ವಹಿಸಿಕೊಂಡಿದ್ದೇವೆ ಎಂಬುದಾಗಿ ನಾವು ಹೆಲ್ಮೆಟ್ ಧರಿಸಲಿಕ್ಕೆ ನಾವು ಅವರಿಗೆ ಸಿದ್ಧತೆಯನ್ನು ಮಾಡಿದ್ದೇವೆ. ಎಲ್ಲರೂ ದಯಮಾಡಿ ಹೆಲ್ಮೆಟ್ ಹಾಗೂ ಸೀಟ್ ಬೆಲ್ಟ್ ಧರಿಸಬೇಕೆಂದು ನನ್ನ 2 ಮಾತುಗಳು ಮುಗಿಸ್ತೀನಿ. ಜೈ ಹಿಂದ್. कर्नाटक हाईकोर्ट ने मैसूर शहरी विकास प्राधिकरण यानी मूडा घोटाला मामले में केंद्रीय जांच ब्यूरो सीबीआई को जांच सौंपने के मामले पर आदेश सुरक्षित कर लिया है। अदालत ने कहा कि फिलहाल लोकायुक्त द्वारा की जा रही जांच जारी रहेगी और जब तक अंतिम आदेश नहीं आ जाता तब तक लोकायुक्त की जांच ही मान्य होगी। इस मामले में कर्नाटक राज्य सरकार ने पहले ही भ्रष्टाचार और अनियमितताओं की जांच के लिए लोकायुक्त को निर्देशित किया था, लेकिन कई आरोपियों के संबंध में सीबीआई द्वारा जांच किए जाने की मांग की गई थी। दरअसल इस मामले की जांच सीबीआई को सौंपने की अपील की गई थी। कर्नाटक हाईकोर्ट के इस फैसले के बाद ये स्पष्ट नहीं हो पाया है कि मामले की जांच सीबीआई को सौंपी जाएगी या नहीं। हालांकि ये बात तो साफ है कि लोकायुक्त की जांच जारी रहेगी। बेंगलुरु के उडुपी जिले के कारकला तालुके के मुदारो गांव में स्थित अब्बना बेट्टू बस्ती में 3 शिलालेखों की खोज ने सबका ध्यान खींचा है। बताया जा रहा है कि इनमें से 29 शिलालेख कन्नड़ लिपि में है और एक नागरी लिपि में है, जिसमें केवल एक अर्थंकर का नाम है। मीडिया रिपोर्ट के अनुसार ये शिलालेख 450 साल पुराने बस्ती के विभिन्न स्थानों पर पाए गए हैं। इसमें 2 पार्श्वनाथ तीर्थंकर के पत्थर की मूर्तियां मिली हैं। इसमें 24 पीतल की मूर्तियों का जो आधार है वो 24 जैन तीर्थंकरों का प्रतिनिधित्व करती है। इसमें एक पार्श्वनाथ तीर्थंकर की धातु की मूर्ति, एक झांझ पर और 2 अधिनाथ तीर्थंकर की मूर्ति शामिल है, जिसमें चांदी की सजावट है। भाजपा नेता प्रसाद लाड ने सोमवार को कांग्रेस के राष्ट्रीय अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे के बयान पर प्रतिक्रिया दी। इसके साथ ही उन्होंने कहा कि महाराष्ट्र में भी यूसीसी लागू किया जाएगा। भाजपा नेता ने कई सवालों के जवाब दिए। कांग्रेस के राष्ट्रीय अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे और वरिष्ठ नेता हुसैन दलवाई के महाकुंभ वाले बयान पर भाजपा नेता ने कहा कि हिंदुओं की आस्था के साथ खेलना कांग्रेस परिवार का पुराना काम रहा है। उत्तराखंड में समान नागरिक संहिता यूसीसी लागू किए जाने पर प्रसाद लाड ने कहा कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की ये सोच है कि देश के सभी राज्यों में यूसीसी लागू किया जाए। अब वक्त है ब्रेक का। ब्रेक के बाद जल्द लौटते हैं। नूर एजुकेशन ट्रस्ट बिदर की ओर से चलाए जाने वाला नूर एमएड एंड बीएड कॉलेज बिदर, रिकॉग्नाइज्ड बाय एनसीटीई दिल्ली,
and affiliated to Bidar University, Bidar. Admission are open for the academic year 2024-25. विशेषज्ञ और सक्षम शिक्षकों द्वारा शिक्षा प्राप्त करने के लिए नूर एमएड एंड बीएड कॉलेज में दाखिला लें और शांत वातावरण में शिक्षा प्राप्त करें। बीदर शहर में बेहतर शिक्षा का एकमात्र केंद्र नूर एमएड एंड बीएड कॉलेज, शाहपुर गेट, बीदर। फोन नंबर्स 9945283920, 8482221297। ब्रेक के बाद फिर एक बार आपका स्वागत है। देखते हैं अन्य समाचार। झांसी से प्रयागराज महाकुंभ जा रही ट्रेन में उपद्रवियों के हमले की खबर आ रही है। बताया जा रहा है कि ट्रेन में उपद्रवियों ने पथराव और तोड़फोड़ भी की, जिसका वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल हो रहा है। ये मामला झांसी मंडल के हरपालपुर स्टेशन का बताया जा रहा है। हमले के दौरान ट्रेन की बोगी में सवार यात्री दहशत में आ गए। उपद्रवियों ने ट्रेन में घुसने की कोशिश की, साथ ही ट्रेन के गेट और खिड़कियां तक तोड़ डाली। वीरांगना लक्ष्मीबाई झांसी से चलकर प्रयागराज जाने वाली ट्रेन नंबर 11801 पर पथराव हुआ है। बताया जा रहा है कि हरपालपुर रेलवे स्टेशन में बड़ी संख्या में यात्री प्रयागराज जाने के लिए इकट्ठा थे, मगर ट्रेन के अंदर पहले से मौजूद यात्रियों द्वारा ट्रेन का गेट नहीं खोला जा रहा था। बस इसी बात पर स्टेशन पर मौजूद भीड़ भड़क उठी और पथराव और तोड़फोड़ शुरू कर दी। पथराव और तोड़फोड़ से यात्रियों में चीख पुकार मचने लगी। यात्रियों ने बताया कि अचानक स्टेशन में मौजूद भीड़ ने पथराव और हमला कर दिया। ट्रेन के अंदर महिलाएं, बच्चे सभी मौजूद थे, जो महाकुंभ स्नान करने के लिए प्रयागराज जा रहे थे। भारतीय जनता पार्टी ने मंगलवार को दिल्ली में आगामी विधानसभा चुनाव के चलते नया कैंपेन सॉन्ग भाजपा दिल्ली में रिलीज किया है। इस सॉन्ग में बीजेपी द्वारा अपने संकल्प पत्र में किए गए वादों का जिक्र किया गया है। गाने में बताया गया है कि यदि दिल्ली में बीजेपी की सरकार बनती है तो दिल्ली वासियों को इससे क्या लाभ मिलेगा और कौन कौन सी योजनाओं का लाभ मिलेगा। बीजेपी के सोशल मीडिया हैंडल पर इस कैंपेन सॉन्ग को पोस्ट किया गया है। इसे शेयर करते हुए बीजेपी ने लिखा, भाजपा दिल में भाजपा दिल्ली में। बता दें कि बीजेपी द्वारा आज दिल्ली में 40 से ज्यादा जनसभाओं का आयोजन किया गया है। इसके साथ ही आज गृह मंत्री अमित शाह और सीएम योगी आदित्यनाथ भी जनसभाएं और रैलियां करेंगे। अमित शाह आज 2 रोड शो और 1 जनसभा को संबोधित करेंगे, वहीं योगी आदित्यनाथ भी 2 जनसभाएं करेंगे। दिल्ली में 5 फरवरी को विधानसभा चुनाव के लिए सभी 70 सीटों पर वोटिंग की प्रक्रिया को पूरा किया जाएगा और इसके बाद 8 फरवरी को नतीजे आएंगे। अमेरिका के राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप और भारत के पीएम नरेंद्र मोदी की दोस्ती बहुत गहरी है। ट्रंप जब राष्ट्रपति बने तो दुनिया के सिर्फ 3 लोगों ने तत्काल बात की थी, उसमें भारत के पीएम मोदी भी शामिल है। सोमवार को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी से ट्रंप ने सोमवार को फोन पर फिर बात की है। दोनों के बीच भारत और अमेरिका के रिश्तों को और बेहतर बनाने पर चर्चा हुई। इसी दौरान ट्रंप ने अपने जिगरी दोस्त पीएम मोदी के अमेरिका आने का प्लान भी बता दिया। समझे पूरा मामला। राष्ट्रपति का पदभार संभालने के बाद ट्रंप की मोदी के साथ ये पहली बातचीत थी। फोन पर हुई बात की पुष्टि खुद ट्रंप ने दी है। तृणमूल कांग्रेस यानी टीएमसी के सांसद शत्रुघ्न सिन्हा दिल्ली में 5 फरवरी को होने वाले विधानसभा चुनाव के मद्देनजर आम आदमी पार्टी यानी आप के लिए प्रचार करेंगे। टीएमसी के सूत्रों ने मंगलवार को यह जानकारी दी। टीएमसी सूत्रों ने बताया कि आसनसोल से टीएमसी सांसद सिन्हा 1 और 2 फरवरी को कम से कम 3 निर्वाचन क्षेत्रों में आप के लिए चुनाव प्रचार करेंगे। इनमें पूर्व मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल का नई दिल्ली निर्वाचन क्षेत्र, मुख्यमंत्री आतिशी का कालकाजी निर्वाचन क्षेत्र और मनीष सिसोदिया का जंगपुरा निर्वाचन क्षेत्र शामिल है। टीएमसी का मानना है कि अभिनेता एवं राजनेता शत्रुघ्न सिन्हा दिल्ली के पूर्वांचली मतदाताओं को आम आदमी पार्टी की ओर आकर्षित कर सकते हैं। पूर्वांचली का तात्पर्य बिहार और उत्तर प्रदेश से आए प्रवासियों से है। पूर्वांचलियों की शहर में खासी संख्या है। सूत्रों ने बताया कि टीएमसी के कुछ और नेता दिल्ली में चुनाव प्रचार में शामिल हो सकते हैं। टीएमसी ने दिल्ली विधानसभा चुनाव के लिए आम आदमी पार्टी को अपना समर्थन देने की घोषणा की है। अब वक्त और ब्रेक के बाद जल्द लौटते हैं।
नूर एजुकेशन ट्रस्ट बीदर की ओर से चलाए जाने वाला नूर एमएड एंड बीएड कॉलेज बीदर, रिकॉग्नाइज्ड बाय एनसीटीई दिल्ली and affiliated to Bidar University, Bidar. Admission are open for the academic year 2024-25. विशेषज्ञ और सक्षम शिक्षकों द्वारा शिक्षा प्राप्त करने के लिए नूर एमएड एंड बीएड कॉलेज में दाखिला लें और शांत वातावरण में शिक्षा प्राप्त करें। बीदर शहर में बेहतर शिक्षा का एकमात्र केंद्र नूर एमएड एंड बीएड कॉलेज, शाहपुर गेट, बीदर। फोन नंबर्स 9945283920 8482221297। ब्रेक के बाद फिर एक बार आपका स्वागत है। देखते हैं अन्य समाचार। मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री मोहन यादव 4 दिवसीय दौरे पर मंगलवार को जापान के टोक्यो शहर पहुंचे हैं। उनकी इस यात्रा का मुख्य उद्देश्य राज्य में निवेश के लिए उद्योगपतियों को आमंत्रित करना है। एमपी के सीएम मोहन यादव का टोक्यो में भारत के राजदूत सीबी जॉर्ज ने गर्मजोशी से स्वागत किया। इस अवसर पर टोक्यो में रहने वाले भारतीय समुदाय ने मोहन यादव को पगड़ी पहनाकर और तिलक लगाकर जोरदार स्वागत किया। इस दौरान सीएम मोहन यादव ने टोक्यो में महात्मा गांधी की प्रतिमा पर पुष्पांजलि अर्पित की। सीएम मोहन यादव ने अपने एक्स हैंडल पर जापान दौरे की वीडियो को शेयर किया। उन्होंने लिखा, नमस्ते जापान। मुझे जापान में हमारे जीवंत भारतीय समुदाय से भव्य और पारंपरिक स्वागत पाकर बहुत गर्व महसूस हो रहा है, जिसमें औपचारिक तिलक और पारंपरिक पगड़ी भेंट की गई। इस यात्रा के दौरान मैं अग्रणी उद्योगपतियों के साथ सार्थक आमने सामने चर्चा करने और उन्हें ग्लोबल इन्वेस्टर्स समिट 2025 में शामिल होने के लिए आमंत्रित करने के लिए उत्सुक हूं। उत्तरी दिल्ली के बुराड़ी में आस्कर पब्लिक स्कूल के पास नवनिर्मित 4 मंजिला इमारत सोमवार शाम को ढह गई। इस हादसे में एक 7 साल की बच्ची की मौत हो गई, जबकि 12 अन्य लोग बुरी तरह से घायल हो गए हैं। इन लोगों को मलबे से बाहर निकाल लिया गया है। अभी और लोगों के मलबे में दबे होने की आशंका है। 7 लोगों की हालत नाजुक बनी हुई है, लिहाजा उन्हें ट्रॉमा सेंटर में भर्ती कराया गया है। दिल्ली पुलिस के मुताबिक उन्हें शाम करीब 7 बजे सूचना मिली कि आस्कर पब्लिक स्कूल के पास 200 वर्ग गज में फैली एक इमारत ढह गई है। सीएम आतिशी ने घटना पर दुख जताया है। पुलिस ने रात को दिए अपने बयान में कहा कि 6:58 पर सूचना मिली, बचाव अभियान जारी है। बिहार के समस्तीपुर जिले से अनोखी खबर सामने आई है, जहां पर विकास नहीं होने पर युवाओं ने ऐसा विरोध प्रदर्शन किया कि पूरे प्रदेश में इसकी चर्चा हो रही है। इलाके में कई सालों से एक पुल का निर्माण नहीं हो रहा है और इस बात के विरोध में कई युवाओं ने अपने सिर को मुंडवा लिया। अब प्रशासन ने पूरे मामले की जांच कराने की बात कही है। जानकारी के अनुसार समस्तीपुर जिले के खानपुर ब्लॉक के अंतर्गत शोभन पंचायत और समस्तीपुर ब्लॉक के छतौना पंचायत के बीच सूरतपुर घाट इलाके के लोग सालों से पुल के निर्माण की मांग कर रहे हैं। लोगों का कहना है कि इस पर आज तक किसी जनप्रतिनिधि ने संज्ञान नहीं लिया और अभी तक निर्माण कार्य भी शुरू नहीं करवाया गया। इन युवाओं का कहना था कि रोसड़ा लोकसभा क्षेत्र से तत्कालीन सांसद रामचंद्र पासवान ने भी इस जगह पर पुल निर्माण के लिए कार्य करवाने का आश्वासन दिया था। इसके बाद उनके भाई भी रोसड़ा और समस्तीपुर दोनों जगह से लोकसभा सांसद बने। उन्होंने भी इस जगह पर पुल निर्माण करवाने का आश्वासन दिया। सिर मुंडवाने वाले युवाओं का कहना है कि कालांतर में समस्तीपुर के सांसद रहे प्रिंस राज ने इस जगह पर पुल निर्माण को लेकर एक बार मुख्यमंत्री को पत्र लिखा था, लेकिन नतीजा शून्य रहा। इस जगह पर पुल निर्माण का कोई भी काम अब तक शुरू नहीं हुआ। तब पुल निर्माण नहीं होने से क्षेत्र के लोगों को काफी निराशा है। आखिर में फिर एक बार देखते हैं मुख्य समाचार। बीदर जिले के भालकी तालुके के मलचापुर ग्राम में शिव योगी सिद्धरामेश्वर की 853वीं जयंती मनाई गई। मुडा घोटाले की जांच सीबीआई को सौंपने पर कर्नाटक हाईकोर्ट का आदेश सुरक्षित, लोकायुक्त जांच जारी। महाराष्ट्र में भी लागू किया जाएगा यूसीसी, मल्लिकार्जुन खड़गे के बयान पर भाजपा नेता का पलटवार। झांसी से प्रयागराज जा रही ट्रेन पर हमला, उपद्रवी जमकर करते रहे पथराव, यात्री दहशत में थे। बीजेपी ने दिल्ली चुनाव के लिए नया कैंपेन सॉन्ग भाजपा दिल्ली ने किया जारी।
शत्रुघ्न सिन्हा दिल्ली विधानसभा चुनाव में आम आदमी पार्टी के लिए प्रचार करेंगे, टीएमसी सूत्रों ने बताया। एपी न्यूज में इतना ही। देश प्रदेश के समाचारों के लिए देखते रहिए एपी न्यूज 24/7। धन्यवाद।